Good evening, all my viewers, and once again I welcome you all in my this session, Spell It Tips and Tricks. So as you know that some spellings are really very scary and frightening. So if you test yourself, you will come to know about it. Okay. So let's throw away this fear, and I would like to tell you that there are 4 strategies of learning spellings. That means through 4 methods we can learn the spelling very perfectly. That is, first is the phonetic spelling strategy. For phonetic means what is phoneme? Phoneme is the smallest unit of sound. आवाज़ की सबसे छोटी यूनिट को हम फोनीम कहते हैं. तो फोनेटिक्स एक साइंस है, साइंस ऑफ साउंड्स. तो इस साइंस को अगर हम समझ लें अच्छे से, तो इसमें कौन से शॉर्ट वॉवल्स हैं, कौन से लॉन्ग वॉवल्स हैं, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स, ये सब अगर हम जानते हों तो हमारे लिए स्पेलिंग्स बहुत इजी हो जाएंगे. एंड दिस इज द एक्चुअली करेक्ट वे ऑफ लर्निंग स्पेलिंग्स. बट एज बीइंग इंडियंस, our mother tongue is not English, so we are not acquainted with these phonetic things. So that's why the second strategy is very easy and applicable for us, rule based spelling strategies. This only I am teaching you, rule based spelling strategies. Then one more strategy is as visual spelling strategies. Through visuals also you can make out. How visuals? Like when I will come to this, I will explain. Like invisible. So in means not, busy means which cannot be visualized, which cannot be seen, and able means which we cannot do it, we are not able to. So invisible, which we are not able to see. So in this way also we can learn the spellings. And then the last one is morphemes. Morpheme is the smallest unit of this word, and when we learn the morphemes, it becomes very easy for us to. So one by one I will take all the strategies so that you become perfect. So for that you have to keep watching my videos and subscribe for my channel so that you are updated with all the things which I tell you. And I promise you that if you follow all these strategies one by one with me, you will perfectly have a command on your spellings. This we have already done. For the viewers who are coming and seeing this video first time, you please see my first video on this spellings, because in that I have in detail explained about vowels, about all these things I have explained, about the sounds, about syllables I have told you all, what is syllable, how one monosyllabic, then how 2 syllables, 3 syllable words, 4 syllables, how we have to divide the words in syllables. You see, please see my previous video for this. Then to make it a summary and very clear for you so that you remember, you note down all the rules, I have just give them a serial rule related to letter C. Okay, kids rule, which we have done. Then rule related to letter K or CK. Then rule related to letter G, rule related to letter QU, floss related, rule related to alphabet FLS and Z, and rule related to singular plural. So till here, once again today we will revise so that for all the new viewers, and once again you will have a revision on it. I hope you will understand and follow, and with this next video I will add new rules to it so that they are very clear to you. Okay, so the first rule is that C can say K or S sound. So C की 2 तरह की आवाजें होती हैं, एक क एक स. कब C क की आवाज निकालता है और कब C स की आवाज निकालता है, इसको हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए. बहुत इजी है कि C के पहले अगर E I Y ए, मैंने आपको एक डायलॉग भी बताया था, एक पिक्चर में ये डायलॉग था, अगर आपको याद हो तो उसमें विलेन ये डायलॉग बोलता है ए. तो ए आप याद रखिए, EIY. अगर इसके पहले सी आ रहा है तो वो हमेशा किसकी आवाज करेगा, स की आवाज. और बाकी सब अल्फाबेट्स के बाद अगर पहले सी आ रहा है तो वो किसकी आवाज करेगा, क की आवाज करेगा. कितना सिंपल है कि नहीं. तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. जैसे हमारे अल्फाबेट्स वर्ड्स दिए हैं, कार, कट, कूल, कर्टेन, कार्पेट,
कंफ्यूज, कॉट। ओके, नाउ स की तरह सिटी, देखिए आई ई आई वाई मिलेंगे आपको, हर सी के बाद ई आई वाई में से कोई ना कोई मिलेगा। सिटी, सेंट, डांसिंग, आइस, सर्टेन, फेस, रिसीव। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हमेशा अपवाद रहते हैं, जैसे सॉकर, इसमें सी जो है वो डबल सी है, ठीक है, लेकिन के की साउंड कर रहा है सॉकर। इसी तरह मसल, मसल में आप देख रहे हैं सी के बाद कॉन्सोनेंट है, लेकिन तो भी यहाँ स की आवाज कर रहा है। तो ये एक्सेप्शंस है, इनको हमें याद करना पड़ता है अलग से। तो आई होप ये फर्स्ट रूल आपको अच्छे से याद है। इसको हम किड्स क्लब रूल भी बोलते हैं। इस रूल का दूसरा नाम क्या है? किड्स क्लब स्पेलिंग रूल। इसमें वही है कि सी एस की तरह प्रोनाउंस होता है बिफोर ई आई वाई, सी सेज के बिफोर एनीथिंग एल्स। फॉर द साउंड ऑफ के ट्राई यूजिंग सी फर्स्ट, इफ इट डजंट वर्क यूज के। पहले आप कभी भी जब आपको स्पेलिंग लिखनी हो और क की आवाज आ रही है तो आप उसमें सी को ट्राई करिए, और अगर सी नहीं काम कर रहा है तो आप के लगाइए। ये एक बहुत जनरल रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कीप आउट, जैसे कीप आउट नहीं होता, सी नहीं होता। कैंप फेयर नहीं होता। क्राफ्ट टाइम, क्राफ्ट नहीं होता, ठीक है। किड्स ओनली, सिड्स इसमें हम उसको सिड्स पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये किड्स रूल को आप सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है ये, कोरी इज अ वेरी एक्टिव कैट। इसमें आप देख रहे हैं सी ऑलमोस्ट 3 जगह आ रहा है, कोरी, एक्टिव एंड कैट, और तीनों में वो ऑलमोस्ट कहीं भी आ सकता है सी। तो इट इज यूज फॉर के साउंड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल ए ओ यू। अब भाई ई आई वाई हमने ले लिया, तो बच्चे कौन से हमारे वॉवल ए ओ यू? तो 5 ही वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू। तो उसमें से ये तीनों के पहले वो के की आवाज करेगा और कॉन्सोनेंट्स के पहले। तो इस सब में आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सब मिल जाएगा। फिर किंग्स एंड क्वींस नेवर वेयर क्राउन्स। अब इसमें देखिए आप 3 जगह के आवाज आ रही है, किंग्स, क्वींस, क्राउन। तीनों में स्पेलिंग अलग है ना। सो ऑल दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली बट द प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट विथ के साउंड। ओके, द लेटर के। अब लेटर के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंग्लिश में सी, ओके, द लेटर सी इज यूजली फॉर ए के साउंड बिफोर द वॉवल्स ए ओ यू। तो जस्ट नाउ वी हैव रेड दैट वॉवल्स ई आई वाई, इन सब के पहले सी की आवाज आएगी, बाकी सब में के की आवाज करेगा। तो सेम थिंग इट इज हियर, बट नाउ व्हेन द के कम्स बिफोर वाई, इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ वर्ड्स। अब के जब भी लास्ट में आएगा बिफोर अ वाई, ओके, सो इट विल ऑलवेज make the sound of K. Here are some common examples of the letter K for a K sound, का sound, ठीक है। Before E I Y, तो E I Y के पहले अगर K भी आ रहा है तो it will be at the end। अब आप इसमें देखो make आखिरी में आ रहा है ना K, skin, skin, skill, ski, poker, keep, ओके। तो इसमें सब में जो साउंड है उसकी लास्ट में है। The letter K is also used at the end of one syllable word। अब कई बार लेटर K जो होता है इसको हम लोग एंड में भी यूज करते हैं, लेकिन वो शब्द 1 syllable होना चाहिए, ओके, लेकिन शॉर्ट वॉवल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल्स पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट वॉवल क्या होता है? जैसे हमने कहा इट, ये शॉर्ट वॉवल है। फिर जैसे हमने कहा कीप, ये क्या है? लॉन्ग वॉवल है। तो यहाँ पर के जो है वो शॉर्ट वॉवल के पहले नहीं आएगा। जैसे देखिए, टू स्पेल द साउंड ऑफ के एट द एंड ऑफ द वर्ड वी यूज सी के या के। अब अगर हम के की आवाज हमको करनी है एंड ऑफ द में, तो या तो के होगा या सी के। तो 2 स्पेलिंग्स आ सकती हैं, या तो आप सी के लिखेंगे एंड में या आप के लिखेंगे। आफ्टर एवरीथिंग एल्स यूज सी के आफ्टर शॉर्ट वॉवल। अभी मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट वॉवल के पहले कभी के नहीं आएगा, इसलिए वहां पे सी के आएगा, ठीक है। और बाकी सबके बाद हम क्या यूज करेंगे? के। जैसे वीक, वीक देखो लॉन्ग वॉवल है ना, वीक, तो इसमें के लगा दिया। लेकिन अगर ये शॉर्ट वॉवल होता, जैसे लैक शॉर्ट वॉवल, रॉक, टैक, लक, टक, बक, ठीक, लॉक, क्लॉक,
मीक, मीक क्या है, देखो लॉन्ग वॉवल है तो ये किस में जाएगा, ये लॉन्ग वॉवल वाले कैटेगरी में जाएगा। ब्रेक लॉन्ग वॉवल वाली कैटेगरी में जाएगा। क्रीक लॉन्ग वॉवल वाली, और बाकी सब किस में जाएंगे, शॉर्ट वॉवल्स में, सीके में। क्लियर? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सीके कहाँ पे यूज होगा और के कहाँ पे यूज होगा, तो ये मिस्टेक हमारी नहीं होगी। जैसे हमने आपको बोला लिखो लॉक, तो आप लिखेंगे LOCK, क्योंकि शॉर्ट वॉवल है तो इसमें के की आवाज आ रही है पीछे, लेकिन हम इसमें सीके का इस्तेमाल करेंगे। यही अगर हमारा लॉन्ग वॉवल हो जाता ब्रेक, ब्रेक, तो आप समझ जाएंगे इसमें सीके नहीं आएगा, इसमें के आएगा, क्योंकि लॉन्ग वॉवल है। क्लियर? अब आता है हमारा सीके कॉम्बिनेशन, जो भी हाल हमने पढ़ा, इसी को हम और अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। जो क्लॉक कैन बी, लुकिंग एट द क्लॉक कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग अ टेस्ट। द सीके कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वन सिलेबल वर्ड आफ्टर अ शॉर्ट वॉवल। ठीक है, तो शॉर्ट वॉवल के बाद हम सीके का यूज करते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे हियर आर सम एग्जांपल्स, पिक, लक, पैक, देखो सब शॉर्ट वॉवल्स हैं। तो आप ये इसको प्रैक्टिस करिए कि शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि फोनेटिक वे से अगर आप स्पेलिंग सीखते हैं, उसके बाद हम फोनेटिक वे आपको लेंगे। फर्स्ट हम आपको रूल्स बता दें, उसके बाद हम जो हमारा सेकंड जो सेशन होगा वो हम लेंगे फोनेटिक्स पे, फोनीम्स पे, ताकि आपको फोनीम समझ में आए। फोनीम समझने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप उसमें रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और दूसरा राइटिंग सेक्शन आपका जो स्पेलिंग है इस पे आपकी कमांड हो जाएगी। पैक, स्टिक, रैक, लिक, डक, ठीक है, तो ये सारे इस सब के पहले आते हैं, EIY के पहले शॉर्ट वॉवल जो होते हैं जितने भी, सब में हम सीके का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कि ए डायलॉग है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डायलॉग ये सी में भी काम करता है, के में भी काम करता है, और सी के और के में हमको डिफरेंसेस बताता है। और एग्जांपल्स हैं रॉकिंग, पिकी, लकी, ब्लैकेस्ट, पैनिकिंग। ओके, ये जी वाला भी हम कल कर चुके थे, हार्ड जी, हार्ड उसकी साउंड और सॉफ्ट साउंड, ये दोनों पे हम कल काम कर चुके हैं, जी और जे। ठीक है, तो जिनको ये दोबारा पढ़ना हो तो वो मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ये सब उसी के ऊपर है। क्यू भी हम कर चुके थे, कू साउंड का। तो ये फिर हम फ्लॉस रूल भी हम कर चुके हैं, FLOSS फ्लॉस रूल, जिसमें हम बताते हैं कि वन सिलेबल वर्ड में कौन से अल्फाबेट्स जब लास्ट में आएंगे तो वो हमेशा डबल हो जाएंगे। तो इसको आप एक बार दोबारा उसमें चेक कर लेंगे। अब आप ये देखिए डबल सी, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेगमेंट, डबल सी। अब देखो, जब सिंगल कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वॉवल्स कैन मीन दैट द फर्स्ट वॉवल इज प्रोनाउंस्ड विद अ लॉन्ग साउंड इंस्टेड ऑफ शॉर्ट साउंड। जब एक सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाता है दो वॉवल्स के बीच में, ठीक है, जैसे ए और ओ के बीच में, ठीक, दो वॉवल आ गए हमारे, जैसे अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग साउंड में पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉन्ग साउंड में। अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, अकाउंट, तो डबल सी। नाउ व्हेन यू hear the words, sometimes we can say the words but we are not able to write them properly, so this will help you there. If the words need to contain a short vowel sound before the K sound, we can double the C in the middle of the word. देखो, if the word needs to contain a short vowel, अगर कोई short vowel है, sound है before the K sound के पहले, we can double the C in the middle of the word. देखो, account, ठीक है, सी है ना, EIY के अलावा आ रहा है तो क साउंड आ रहा है, तो इसको हम लोग सी को डबल कर देंगे, सी का ही है ये सब। ब्रोकली, हिकअप, ठीक है, क की आवाज आ रही है ना, हिक, क की आवाज आ रही है, तो और इधर भी कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क की आवाज आ रही है, यानी सी, ठीक है, तो उसको हम डबल सी कर देंगे। क्लियर? एक्यूरेट, ऑक्यूपाई, टोबैको, raccoon, accuse. So now you see how many spellings you can learn at a time when you know this rule. So once again I will tell you that a single consonant, एक single consonant जो दो वॉवल के बीच में आता है तो वो लॉन्ग साउंड में पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसमें के साउंड आ रहा है तो हम उसमें सी को डबल कर देंगे।
अब आता है हमारा जो हमने पहले बहुत बार हम पढ़ चुके हैं नाउन्स, इसके ऊपर हम पूरा वीडियो भी कर चुके हैं नाउन्स के नंबर पे, लेकिन फिर से ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेलिंग्स के लिए। हमको करेक्ट वे में प्लूरल बनाना आना चाहिए। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चों की बात है, लेकिन यही हम कई बार गलती कर जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम एस को जोड़ते हैं, एड एस फिर एड ईएस। अब एस और ईएस के लिए हमने आपको बताया था कि जो वर्ड्स जिनके पीछे कौन सी साउंड्स आती हैं, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस, उन सब के पीछे हम क्या लगाते हैं, ईएस। क्या लगाते हैं, ईएस, प्लूरल बनाने के लिए। और बाकी सबके पीछे क्या लगाते हैं, एस। अब दूसरा वाला रूल था, इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी और वर्ड आर है जैसे, है ना कॉन्सोनेंट, तो ये वाई किस में बदल जाएगा, आई में, और क्या लग जाएगा उसमें, ईएस। तो क्या होगा, चेरी, चेरीज। हाँ, लेकिन अगर देखो इसमें वॉवल है, वाई के पहले अगर वॉवल है, ए है, तो वो नहीं बदलेगा वाई आई में, तो क्या हो जाएगा, केवल एस जुड़ेगा। जैसे डेज का डे का डेज। ठीक, तो ये रूल्स हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत सिंपल है। और लास्ट में जस्ट एड एस, ये हो गया। इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवल प्लस ओ, अगर वॉवल है और ओ है, ठीक है, तो हम क्या ऐड कर देते हैं उसमें, केवल एस। ठीक है, जैसे पिस्ताचियो, पिस्ताचियोज। ठीक, इफ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट और ओ है, जैसे हीरो, हीरो, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, हीरोज। ठीक है, फिर वर्ड एंडिंग इन एफ और एफ, ये भी कई बच्चों को ये रूल्स नहीं आते हैं, बड़ा वो लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। तो एफ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एफ या एफ ई को वी में कर देंगे और उसमें ई एस लगा देंगे। जैसे लोफ, लोव्स। ठीक है, नाइफ, नाइफ्स। कई एफ जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे शेफ, शेफ्स। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत हैं इसमें। तो एक बार जब भी आप इसको पढ़ें, किसी भी ग्रामर बुक में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो आप इसको आप जब भी रीड करें तो एक्सेप्शंस को जरूर याद करें, क्योंकि एडिटिंग में एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं। इरेगुलर होते हैं कुछ, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, आइस, आइस, है ना, कोई चेंज होते हैं, कोई नहीं चेंज होते हैं, कोई सिंगुलर प्लूरल सेम रहते हैं। वो सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं नाउन नंबर में। अगर आपने अभी इसको ढंग से नहीं किया हो तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए, नाउन नंबर वाला आपको मिल जाएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो और विद दिस you please subscribe the channel, because next videos are very important, which will deal with syllables. Many I will tell you, some very very important things I will tell you which you have not learnt before. और मैंने आपके लिए बहुत कुछ तैयार किया है, और मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाए। So please subscribe the channel for my upcoming videos. Thank you. Have a nice day.